Hello children, this is part 2 of your chapter materials, metals and non-metals, that is chapter 4 of class 8. So children, in part 1 we have discussed what are metals, what are non-metals, some examples of metals and non-metals, and also we discussed the physical properties of metals and non-metals. In this part we will discuss the chemical properties of metals and non-metals, but not all chemical properties. In this part only we'll discuss the reaction of metals and non-metals with oxygen. Okay, now first we'll discuss how the metal reacts with oxygen. Okay, generally children, the metals react with oxygen to form metallic oxides, and the most important thing is that the metallic oxides are basic in nature. Okay, so how the metallic oxides are produced when the metal reacts with oxygen, and how the metallic oxides are basic in nature. So these two things we'll discuss here, and then we'll discuss the reaction of non-metals with oxygen. Okay, so I'll with the help of examples I will explain you how the metallic oxides are produced when the metal reacts with oxygen. Then I will explain you how to know that the metallic oxides are basic in nature. Okay, so now let me explain you the examples. So here the first example is very common one, that is rusting of iron. Okay, and you know that rusting of iron, why it takes place? You all have seen the rusted iron. Okay, so I am showing you the diagram. Okay, so this is the iron metal. ये आयरन की कड़ी ली है, कड़ी है डायग्राम में, जिसमें रस्ट हो गया है. द ब्राउन कलर, द रेडिश ब्राउन कलर स्ट्रक्चर्स ऑन द surface of this iron material are the rust. Okay, so why this rust is formed? ये rust क्यों formation हुआ है? क्योंकि ये metal, what is the metal here? The metal is iron. आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. ओके, मॉइस्चर के प्रेजेंस में जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब ये रस्ट बन जाता है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. दे आर ऑक्सीडाइज्ड, नॉट ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड. ओके, सो हियर द रिएक्शन आई हैव शोन यू द फर्स्ट एग्जांपल्स रिएक्शन. आयरन, its symbol is Fe, then it combines with oxygen in presence of oxygen, that is O2, and I told you that moisture is required. So water, moisture means what? Water, that is H2O. It all these in presence of oxygen and water, the iron forms the rust, that is the iron oxide. Okay, so iron oxide, what is the formula? Fe2O3 is the formula of iron oxide. So this iron oxide is nothing but your rust. Okay, so how rust is formed? Rust is formed when iron is exposed to air and moisture. And what is the composition of rust? Its composition is iron oxide. So this is Fe2O3 is the formula, and it is a metallic oxide. Okay, so this is one example how the metallic oxides are produced. Now come to the next example, that is you might have seen that like iron, the copper also gets rusted. Okay, so if you keep the copper vessels exposed in the air in presence of moist air, again what is required? Oxygen is required.
water is required, but along with that carbon dioxide is also there in the atmosphere. So when copper comes in contact with the moisture, carbon dioxide and oxygen, then it forms the rust. Okay, and what is that the color of the rust that is formed on the copper rust? It is green in color. So I will show you here. You can see this is the copper material, and the rust has been formed. This is the copper rust. It is green in color. The copper is brown in color, reddish brown in color, but the rust is green in color. But in case of iron, it is iron is shining. It is shining, or it is brown in color, but here the rust is red in color. Okay, so now what happens? You see the reaction. You can see that the green material, the rust, is the copper hydroxide, okay, and copper carbonate. So the rust formed here is not a single material. It is the combination or mixture of two things. दो चीज का ये मिक्सचर है. जो आपका ग्रीन कलर का रस्ट है कॉपर में, वो क्या है आपका? एक है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल 2 एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कंपोजिशंस. ठीक है, आयरन का रस्ट का कंपोजिशन क्या है और कॉपर का रस्ट का कंपोजिशन क्या है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, सो हियर इन द रिएक्शन यू कैन सी दैट द कॉपर इज देयर, then water is there. Water means your moisture is there. Then in the air carbon dioxide and oxygen. So the copper reacts with moisture, carbon dioxide and oxygen to produce the mixture of copper hydroxide and copper carbonate. So these two combinedly form the rust. Am I clear? Now how to test the nature of the rust? So I have told you that the rust are the metallic oxides are the rust. So the metallic oxides are basic in nature. But how to know that? So for that purpose we have to conduct one experiment. So what to do in that experiment? हम वो जिस मेटल में हमारा जो रस्ट हुआ है उसको हम अगर खुरद के ले लेंगे, रस्ट को निकाल लेंगे, किसी से अगर हम उसको घिस लेंगे तो रस्ट निकल जाएंगे. ठीक है, देन उस रस्ट को हम डिज़ोल्व कर लेंगे वाटर में. एक बीकर में थोड़ा सा वाटर ले लेंगे या एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा वाटर ले लेंगे और उस रस्ट को उसमें डिज़ोल्व कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से. ठीक है, तो क्या होगा? वो रस्ट क्या होगा? बिकॉज ये हैवी है तो रस्ट क्या होगा? वाटर में नीचे सेडिमेंट हो जाएगा. लेकिन हम अगर अच्छे से उसको हिला दे या फिर अच्छे से सेक कर ले तो क्या होगा? अच्छे से आपका रस्ट जो है वाटर के साथ मिल जाएगा और वाटर का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा. तभी आपको पता चलेगा कि ये रस्ट वाटर में मिक्स हो गया है, डिज़ोल्व हो गया है. ठीक है, अच्छा, जनरली हम आप क्लास 7th में पढ़े हो कि कोई भी चीज़ बेसिक है या एसिडिक है उसको जानने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं. एंड जनरली विच इज़ द कॉमन इंडिकेटर वी आर यूजिंग? कॉमन इंडिकेटर है हमारा लिटमस पेपर. एंड आपको पता है कि लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस अगर रेड हो जाए इसका मतलब है कि ये द सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन में हमने डीप किया है ब्लू लिटमस को और ब्लू लिटमस रेड हो गया, इसका मतलब है वो सोल्यूशन एसिडिक है. अगर रेड लिटमस को हम डीप करें, अगर वो ब्लू हो जाए, इसका मतलब है सोल्यूशन बेसिक है. तो अभी ये जो रस्ट है, रस्ट को डिज़ोल्व किया है वाटर में, तो उसको अगर उस सोल्यूशन में अगर हम
रेड लिटमस को और ब्लू लिटमस को दोनों को हम डीप करेंगे, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि ये एसिड है या बेस है। तो हम एक बार रेड को डीप करेंगे, फिर देखेंगे उसका कलर क्या चेंज हो रहा है, फिर ब्लू को डीप करेंगे, फिर देखेंगे उसका कलर क्या चेंज हो रहा है। तो अभी देखो, जैसे मैं ये डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ, ये देखो रस्ट का जो सस्पेंशन है वाटर में डिजोल्व किया हुआ है, तो वाटर का कलर भी चेंज हो गया है। ये आयरन का रस्ट लिया गया है, फिर उस आयरन रस्ट को थोड़ा सा हमने वॉच ग्लास में लिया है। फिर अभी हमने देखो यहाँ पर रेड लिटमस पेपर को डीप किया है। उसमें हम जब रेड लिटमस को डीप किए हैं तब देखो थोड़ा सा आपका इधर से ब्लू कलर हो रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, रेड लिटमस ब्लू हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, द सस्पेंशन इज बेसिक। सो द सस्पेंशन में क्या था आपका, रस्ट। रस्ट क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है। सो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और इन द अदर हैंड अगर हम रेड लिटमस को जब करते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। ब्लू लिटमस को अगर इसमें डीप करेंगे तो क्या होगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है ये जो रस्ट या फिर मेटालिक ऑक्साइड है, ये आपका बेसिक इन नेचर, ठीक है। इज इट क्लियर? सो नाउ हाउ द नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। Non-metals also produce oxides, that is when they react with oxygen, okay. But what is the difference? They also form the oxides, that is the metal also produce oxides, the non-metal also produce the oxides. But what is the difference? The major difference is that the metal oxides are basic in nature, but the non-metallic oxides are acidic in nature, okay. So now here one experiment I will explain you to know that the non-metallic oxides are acidic in nature. So here what we are taking a small amount of powdered sulfur इन ए डिफ्लैग्रेटिंग स्पून। इसका मतलब क्या है कि हम कुछ सल्फर सल्फर नॉन मेटल है, हम उसको डिफ्लैग्रेटिंग, मतलब देखो मैं आपको दिखा रही हूँ डायग्राम में, ये देखो ये एक स्पून है जिसका एक लंबा सा हैंडल है। अगर आप घर में बनाना चाहोगे तो आप बस एक ढक्कन ले लो किसी बोतल का और उसमें एक वायर से आप उसको बांध लो, ठीक है। तो आपका स्पून बन गया, या फिर ऐसे रेडीमेड मिलता है आपका स्पून, जैसे लेफ्ट साइड में दिया है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, ओके। अच्छा, अभी डिफ्लैग्रेटिंग स्पून को स्पून में हमने क्या लिया, सल्फर लिया। अभी हम क्या करेंगे, उसमें हम जब आपका सल्फर बर्न होने लगेगा, ठीक है, जब सल्फर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तब ये जलने लगेगा। तब जैसे ही जलने लगेगा तब हम क्या करेंगे, इसको एक ग्लास टम्बलर में इमीडिएटली भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने सल्फर लिया, जैसे आपको यहाँ डिफ्लैग्रेटेड स्पून में दिखाया जा रहा है, और ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये बर्न होने लगता है, जलने लगता है। तब जैसे ही ये जलना शुरू करेगा हम इमीडिएटली ये जो टम्बलर है बीच में देखो ग्लास टम्बलर है, उसमें उसके अंदर घुसा देंगे और उसका इमीडिएटली ढक्कन को बंद कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि उससे जो गैस रिलीज हो रहा है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ दिस सल्फर और बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ सल्फर विथ ऑक्सीजन, द गैस इज रिलीज्ड एंड वी हैव टू कलेक्ट दैट गैस। हमको वो गैस कलेक्ट करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी हम उसको इमीडिएटली टम्बलर का लीड को बंद कर दिए, ठीक है। नाउ आफ्टर सम टाइम वी हैव टू रिमूव द स्पून। स्पून को धीरे से रिमूव कर देंगे, लेकिन उसका ढक्कन बंद रहेगा, टम्बलर का जो लीड है वो बंद रहेगा, ओके। देन what we have to do, a small quantity of water will be added into the tumbler
will be poured into the tumbler, just lifting the lid little bit, then quickly the lid is closed. Okay, थोड़ा सा हटा के लीड को हम पानी डालेंगे, फिर उसको बंद कर देंगे. उसके बाद हम टम्बलर को अच्छे से शेक करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी क्या होगा, जो गैस था वो गैस क्या हुआ आपका वाटर में डिजोल्व हो गया. ठीक है, नाउ दैट वाटर विल बी टेकन इन ए वॉच ग्लास. जैसे हम पहले मेटल के केस में लिए थे ना एक वॉच ग्लास में, तो वॉच ग्लास में हम वाटर को जो डिजोल्व्ड गैस जो डिजोल्व हुआ है वाटर में, उस लिक्विड को या फिर उस सोल्यूशन को हम एक वॉच ग्लास में लेंगे एंड अगेन विल गो फॉर ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस टेस्ट. सो देखो आप ये वॉच ग्लास जो है उसमें हमने एक तरफ देखो राइट साइड में देखो ब्लू लिटमस लिया है और लेफ्ट साइड में हमने रेड लिटमस लिया है. तो देखो ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो गया है, लेकिन रेड लिटमस जो है उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ. ब्लू लिटमस रेड हो गया, इसका मतलब क्या है, द सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर. सो ये एसिडिक जो है ये क्या है, दिस इज एक्चुअली, वाटर तो न्यूट्रल होता है, वाटर ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, लेकिन उसमें जो गैस डिजोल्व हुआ वो गैस कहाँ से रिलीज हुआ, वो गैस हुआ आपका सल्फर का बर्निंग के वजह से. ओके, सो वो सल्फर बर्न होने के वजह से आपका क्या हुआ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और वो ऑक्साइड अब आपका वाटर में डिजोल्व हुआ. तो उसको हमने जब लिटमस टेस्ट किया तो वो एसिडिक नेचर दिखाए. ठीक है, तो अभी ये जो सल्फर का जो ऑक्साइड है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ओके, तो यहाँ मैं आपको रिएक्शन में दिखा रही हूँ. देखो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुआ व्हेन द सल्फर इज बर्न्ड और व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के वजह से आपका क्या रिलीज हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है SO2. अभी हमने क्या किया, वाटर ऐड किया, तो H2O जब ऐड किया तो हमको क्या मिला, जो सोल्यूशन मिला वो क्या मिला हमको, सल्फरस एसिड, दैट इज H2SO3. ओके, ये एक सल्फरस एसिड है. हाँ, तो हमने जब उसको लिटमस टेस्ट किया तो उसका एसिडिक नेचर हमको पता चला. सो दिस शोज दैट द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर acidic in nature. So here I have discussed the reaction of metals and non-metals separately, how they react with oxygen and what is the nature of the metallic oxides and non-metallic oxides. So children, often children found it difficult to understand the chemical reactions and how these changes are taking place. So definitely I'm conducting these experiments in the lab, so definitely your teacher may also show you in the lab, but I hope with these examples and these reactions and these diagrams which I have given here, it is very much clear to you how these processes are being taken place. And still then, if you have any queries, you can ask me in the comment section. Okay students, thank you.